کچھ صورتوں کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے. ان کو کہتے ہیں مسبحات قرآنی. صبح اس تسبیح ہے. سبحا یسبح، اس سے مراد تسبیح، اسی سے تسبیح ہے. یہ اصل میں کہتے ہیں مطار القطار، ایسی بارش جو قطار کے ساتھ ہو، جسے موسلا دھار بارش کہتے ہیں. ایسی بارش جو ٹوٹے نہ، مسلسل ہو رہی ہے، ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ. ایسی بارش جو ختم نہ ہو. مسبحات، سبح، تسبیح، اسی سے، سب اسی سے نکلا ہے. آگے ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ واللہ ذو الفضل العظیم. یہ ذالک فضل اللہ، یہ ہمارا فضل ہے. یؤتی من یشاء، ہم جس کو چاہیں روحانی دنیا دے دیں، جس کو چاہے جسمانی دنیا دے دیں، جس کو چاہے روحانیت کا مالدار بنا دیں، جس کو چاہے دنیا کا مالدار بنا دیں، جس کو چاہے روحانیت کا بادشاہ بنا دیں، جس کو چاہے دنیا کا بادشاہ بنا دیں. اور جب اگر ہم پھر چاہیں تو واللہ ذو الفضل العظیم، پھر ایسا فضل بھی دے دیتے ہیں جو عظیم سے عظیم تر ہے. کائنات یاد رکھتی ہے کہ وہ روحانیت کے تاجدار تھے. وہ بادشاہ گزرا ہے تو وہ دنیا کا بادشاہ تھا، اور ہوتا اس کے فضل سے ہے. یہ دیکھیں، یہ اصل راز ہے. ذالک فضل اللہ، کس کا فضل ہے؟ اللہ کا. یوتی، جس کو عطا کرے، من یشاء، جو اس کی مرضی میں آئے، جس کو وہ چاہے. من یشاء، جس میں اس کی منشا ہو، جہاں اس کی مرضی ہو، اس کو عطا کر دیتا ہے. اس کا فضل ہے، اس کا فضل ہے، اس کو عطا کر دیتا ہے. من یشاء. فضل عطا کس کو کرتا ہے؟ اس کا فضل کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس کا کرم، ابر رحمت، یہ سارا فضل کے معنی ہیں. اس کی عطا، جود و سخا، یہ سب فضل کے معنی ہیں. اس کی عنایت، اس کی کریمی اور کرم نوازی، یہ سب فضل کے معنی ہیں. کس کو ہوتی ہے؟ وہ طلب والوں کو ہوتی ہے، وہ تڑپ والوں کو ہوتی ہے، اور ان کو ہوتی ہے جن کے پاس تلاش ہو. تلاش، طلب ہو، تڑپ ہو اور تلاش ہو. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے سے پورے بر صغیر میں حدیث پھیلی ہے. اور آج بھی اگر حدیث کا نام آئے گا تو ان کا سلسلہ ہے، اور سارا ثواب انہی کو ہوگا. دلی کے شہنشاہ تھے، روحانیت کے بادشاہ تھے، اور بڑے بڑے شہزادے ان کے غلام، بادشاہ ان کے غلام تھے، ان کی سیوا خدمت کرتے تھے. لیکن ہر سال رمضان مرشد کے ہاں گزارتے تھے لاہور میں. حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کی، ان کے مرشد، ان کا یہاں مزار ہے لاہور میں. لاہور کی حدود سے پہلے اتر پڑتے تھے سواریوں سے، اور ننگے پاؤں آتے تھے. بہت بڑے عالم تھے، اپنے علم کو اٹھا کے لپیٹ دیتے تھے. فقیر بن کے آتے تھے، لا علم بن کے آتے تھے. اور مرشد کی توجہات کیسے لیتے تھے؟ اپنے ساتھ کاریگر لاتے تھے، سامان لاتے تھے. یہ دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ چھت ٹوٹی ہوئی ہے، یہاں کمرہ اور بنانا ہے. حضرت کے پاس حضرت کی چیزوں کی، لنگر کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں یہ مرمت کرنی ہے، یہاں یہ چیز سنبھالنی ہے، اس کو پالش کرنا ہے، اس کو رنگ کرنا ہے، یا یہ سارے بندے ساتھ لاتے تھے. پورا مہینہ حضرت کی خانقاہ کی، یہ تسبیح خانہ، خانقاہ، آستانہ، یہ ایک ہی معنوں میں آتا ہے. حضرت کی خانقاہ اور تسبیح خانے کی بس خدمت کرتے رہتے تھے. کوئی نہیں پہچانتا تھا یہ محدث عظیم ہیں، یہ بہت عظیم ہستی ہیں. 19 رمضان کو سب جتنے خدمت والے ساتھ لاتے تھے، سواریاں ہوتی تھیں، آگے گھوڑے ہوتے تھے، اعلیٰ قسم کی بگیاں ہوتی تھیں، پھر پیچھے اونٹ ہوتے تھے، پھر پیچھے بیل ریڑیاں ہوتی تھیں،
پھر سامان لادنے کے سامان ہوتے تھے، وہ سب کو جمع کرتے تھے 19 رمضان، اور 19 رمضان کو جمع کر کے فرماتے تھے کہ جس طرح قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے اور سورۃ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے، اور جس طرح سورۃ فاتحہ جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، فرمائے اس طرح جیسے سید الایام ہے جمعے کا دن جو سارے ہفتے میں ہے وہ جمعے میں، اسی طرح رمضان کا جو دل ہے وہ آخری عشرہ ہے، اور فرماتے تھے رمضان کے دل آخری عشرے میں اپنی خدمت کو بڑھا دو، اپنی خدمت کو بڑھا دو۔ اور میں ان خدمت والوں سے یہ بات بھی عرض کر رہا تھا، جتنی بھی فتوحات ہیں آپ اٹھائیں تاریخ ساری کی ساری، ان سب میں جد و جہد رمضان میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ سمجھا تھا رمضان روزے کا نام ہے، کمرہ بند کر کے سو جاؤ، دن ڈھلے اٹھو، نماز پڑھو، تسبیح کرو، ادھر افطار کا وقت ہو گیا، اس کا نام رمضان ہے۔ لیکن رمضان تو جد و جہد کا نام ہے، ہمارا رمضان جد و جہد کا مہینہ ہے، محنتوں کا مہینہ ہے، کوششوں کا مہینہ ہے، خدمتوں کا مہینہ ہے۔ وہ عبادت کی خدمت ہے یا خدمت کی خدمت ہے؟ اور رمضان میں کائنات میں عظیم کارنامے، عظیم واقعات، عظیم کائنات کے راز ملے ہیں۔ رمضان تو خدمت اور عبادت کا مہینہ ہے، رمضان جذبوں کا مہینہ ہے، جذبوں کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، پہلے دن سے رمضان کو ہم نے عبادت کے نام پہ سنا ہے، اور عبادت تو بہت ضروری ہے، عبادت سے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس عبادت کی روح کو استعمال کہاں کرنا ہے، وہ استعمال جہاں کرنا ہے اس کی ترتیب بھی تاریخ میں موجود ہے۔ عبادت سے ایک روح پیدا ہوتی ہے، عبادت سے ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سن، اہل البیت کے کئی بزرگوں کے واقعات میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات میں یہ بات ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، رمضان میں قافلے بناتے تھے، اور وہ قافلے مختلف گاؤں، قریے، بستی اور دور دراز پھیل جاتے تھے، اور وہاں پھیل کے 3 کام کرتے تھے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے، یعلم الکتاب والحکمہ، اللہ اللہ سکھاتے تھے، اور دوسرا کام خدمت کرتے تھے، ان میں کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف والا ہے، کوئی عیالدار ہے، کوئی پریشان ہے، اس کی خدمت، اس کی ضروریات کا خیال۔ اور تیسری چیز جو کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے، انہیں زندگی میں جینے کا سلیقہ سکھاتے تھے، سیویلائزیشن، تہذیب سکھاتے تھے، زندگی میں جینا کیسا ہے۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیری عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، زندگی سکھاتے تھے۔ یہ تاریخ ہے پوری، اور اس میں حقیقتیں ہیں۔ میں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں گیا، اب خانقاہ ہے، وہ خانقاہ ختم ہو گئی، جب میں وہاں گیا تو اس کے اندر ایک روح آج بھی موجود تھی، صدی ہو گئی، ختم ہو گئی زندگی، روح موجود تھی، اور ان کا بھی یہی مزاج تھا۔ اس کو خدمت کہا ہے۔ کس کس شعبے کی تھی؟ میں نے اس لفظ کو سمیٹ کے لفظ خدمت کہا ہے۔ عبادت بھی تھی، خدمت بھی تھی۔ وہ بھی روزہ ہے، صبح سویا، دوپہر سویا، شام سویا اور روزہ کھول دیا، یقیناً روزہ ہے، میں اس کا کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ یہ بھی خود مجاہدہ ہے۔ لیکن میں ایک اب بات بتاؤں، فارغ بیٹھنے والے کو خود روزہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ سن لیں، حقیقت کہہ رہا ہوں، میرا تجربہ ہے، فارغ بیٹھنے والے کو خود روزے کا احساس زیادہ ہوتا ہے، اور وہ مصروف سے زیادہ نڈھال بن جاتا ہے، جبکہ ہوتا نہیں ہے نڈھال۔ یہ ایک بات کا اندر پیغام مل رہا ہے، اصل میں اندر کی ایک پکار اور آواز ہے کہ روزہ 2 چیزوں کا نام ہے، عبادت اور خدمت کا نام ہے۔ یہ خدمت، اب میں واپس اپنی بات پہ آتا ہوں جہاں سے شروع ہوا تھا، یہ خدمت ہے، ذالک فضل اللہ
मुसब्बिहात से शुरू अल्लाह ने किया कि ख्याल करना हम जब करते हैं तो बारिशें बरसा देते हैं, करते हैं तो बारिशें बरसा देते हैं, और फिर बारिशें जब बरसाते हैं तो हमारा फजल जब आता है, ज़ालिका फजल युती मन यशा, हमारी मर्जी है जिसको दे दें, वो काला हो गोरा हो, तुम्हारी नजर में कमीना हो, तुम्हारी नजर में खबीस हो, तुम्हारी नजर में को हो, जब हमारी नजर पड़ती है फिर हम उसको अता भी करते हैं और उसको इसके काबिल भी बना देते हैं, अता भी करते हैं, इस काबिल भी बना देते हैं, हमारी नजर काफी है। आप सुनना जरा गौर से, फकीर का विसाल का आखिरी वक्त था, मुझे देखना एक अनोखा वाक्य सुना रहा हूं। फकीर के विसाल का आखिरी वक्त था, उनका आखिरी वक्त था। फरमाने लगे मेरी ये चीजें, मेरी पगड़ी, मेरी अबा, दो चीजें, मेरा लिबास, मेरा कशकोल, मेरा असा डंडा, मेरी जो बिछोना है, अपने खादिम से कहा इसकी गठड़ी बांधना, मेरी तदफीन के बाद, मेरे कफन दफन के बाद ताखीर ना करना, बस मेरी तदफीन के बाद इसकी गठड़ी बांधना, दरिया पे जाना, एक कश्ती मिलेगी, कश्ती में बैठ जाना, कश्ती जाके तुझे किनारे पे छोड़ेगी, एक बस्ती आएगी, उस बस्ती में पूछना इस नाम का बंदा है, और वो इस नाम का बंदा तुझे जिस हालत में मिले, जरा गौर से सुनिएगा, उसको जाके बस ये चीजें दे के तेरी जिम्मेदारी खत्म है। अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह से ताल्लुक बनाया, कलमा पढ़ा, चले गए, तदफीन हो गए। खादिम ने वो चीजें इकट्ठी की, इकट्ठी करके आगे गया, आगे कश्ती मिली, कश्ती में बैठे, मल्लाह ने पूछा कहां जाना है, उसने कहा इसका किनारा, उसने कहा फलां जगह बस्ती है, कह रहे हाँ वहां जाना है। पहुंचे, अब बस्ती है, किससे पूछूं, बस नाम याद था। पूछा इस नाम का कोई बंदा है, उसने शक्ल देखी, लोगों ने शबाहत देखी कि दुर्वेश, ज़ाहिर किसी दुर्वेश का खादिम था। उन्हें कहा नहीं, हजरत ने सही फरमाया। आगे पूछा, उन्हें कहा एक हिजड़ा तो है इस नाम का, बाकी इसका बंदा तो कोई इस बांधा ना। उसने कहा मुझे उसी के पास ले चलो। हजरत ने फरमाया तो वह जिस हालत में हो उसको दे देना। हिजड़े के पास जब गए, उसकी उम्र ढली हुई थी, बूढ़ा था, लोग उससे नफरत करते थे। उसके पास जब गए तो उसने दरवाजा खोला तो परेशान था, वहशतनाक था, और कहा इंतजार कर रहा था। और उसको ये चीजें जब दी, उसने अपना सारा लिबास उतारा, ये लिबास पहना, ये सब पहनते ही वो वैसी उसकी कैफियत होगी जैसे मुर्शिद की कैफियत है। विलायत भी, इनायत भी, अता भी, तजल्लियात भी, कैफियत भी, वरूद भी, सारी कैफियत वैसे हो गई। और ये बैठ गया, और ये उसके सामने सर झुका के, वो इसके सामने सर झुका के बैठा। इसके बाद इसने कहा शेख मुझे इजाजत है, तो उसकी बिल्कुल आवाज ऐसे हो गई। इसलिए फरमाया जो फनाफ शेख होता है 100% एक वक्त आता है उसकी शक्ल, लहजा, कैफियत सारी मुर्शिद की तरह हो जाती है। उसको असल में अता थी। ये निस्बत होती हैं, निस्बत तसव्वुफ में, सूफिया में निस्बतें होती हैं, निस्बतें इनकासी भी होती है, बहुत सी निस्बतें हैं। उसको निस्बत मुंतकिल हुई उस लिबास, उस हुलिये से, और अगली ड्यूटी उसकी थी, और वो उसके बाद रिजालुल गैब में से हो गया, और उसकी अगली ड्यूटी शुरू हो गई। वो रिजाल खत्म हो गया, उस दुनिया से चला गया, उसका सारा लिबास उसके जिम्मे हुआ। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही, हम जिसको चाहे अता करते हैं। तुम्हारे इंतखाब अपने हैं, हमारे इंतखाब अपने हैं। तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद, तुझे खुदी पसंद, मुझे खुदा पसंद। हमारी अपनी एक अदा है, हुक्म है, इंतखाब है, बेनियाजी है। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा, हम उसको अता करते हैं जिसको हम चाह लेते हैं। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, कुरान की दूसरी आयत बयान की मैंने। अल्लाह चुनता है जिसको चाहे, उसकी मंशा हो। अल्लाह यज्तबी इलैहि
मैं यशा, हम जिसको चाहे चुन लेते हैं, हमारी मर्जी है। वयहदी इलैहि मन युनीब, हिदायत देते हैं उसको जो हमारी तरफ रुजू करता है। युनीब इनाबत से है, जो हमारी तरफ रुजू करता है, जो इस गम को अपना गम बनाता है, जो इस फिक्र को अपना फिक्र बनाता है, हम उसको फिर चुन लेते हैं। चाहे वो 1911 से हो, 2011 से हो, उसने अपने गम को गम नहीं बनाया, हम उसे नहीं चुनेंगे, हम उसका इंतखाब नहीं करेंगे। उसके अंदर गम लग जाए, फिक्र लग जाए, दर्द लग जाए, उसका हम इंतखाब कर लेंगे। वयहदी इलैहि मन युनीब, हम उसको हिदायत देंगे जिसके अंदर तलब होगी, तड़प होगी, जज्बा होगा, बेचैनी होगी, बेकली होगी, बेकरारी होगी। ये उनके उसके नाम के जज्बों का सफर है। अगर अल्लाह का फजल चाहते हैं और बहुत ज्यादा चाहते हैं, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़ल अज़ीम भी चाहते हैं कि उसके फजल इतना हो, मुसब्बिहात बारिश इतनी 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 कि बस इंतहा हो जाए, तो फिर अपने अंदर इनाबत पैदा करें। और इनाबत कहते हैं तलब को, तड़प को। एक है बच बच के चलना। अच्छा जी, हमें फिर इजाजत है, हजरत आ रहे हैं कोई काम बता देंगे, हजरत आ रहे हैं कोई काम पूछ लेंगे, बच बच के जिंदगी चल पड़े। एक है इनाबत और तलब हो कि मैं पिस जाऊं, मेरी सफात और सलाहियतें अल्लाह तेरी मखलूक को खिलाने पिलाने में, उनकी खिदमत में और उनके जज्बों में लग जाए। एक जज्बा ये है, एक जज्बा बच के चलने का है। तू बचा बचा के न रख इसे, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, ये शिकस्त हो तो अजीज तर, निगाहे आईना साज में। ये यूं तेरा वो एक आईना है, बचा कर रखता है। ये दिल का आईना वो है, ये जितना टूटेगा, ये जितना चोटें लगेंगी, ये जितना टूटेगा, ये जिसको जितनी चोटें लगेंगी, उसकी नजर में उतना कीमती होगा। बायजीज बुस्तामी से पूछना, सुनना जरा गौर से, आपको रोज अल्लाह का दीदार, आपको अल्लाह का दीदार कैसे होता है? कहा मुर्शिद की खिदमत में मैंने रहा, इबादत भी खिदमत भी की, और दिल पे लगी चोटें नागवारियों की। हर चोट को मैंने अल्लाह की मोहब्बत से सहा लिया, और हर चोट के अंदर अल्लाह की तजल्ली मुंतकिल होती गई। एक वक्त आया दिल अल्लाह की आमाजगाह बन गया। मैं मोमिन के दिलों में रहता हूं, इस दिल में रहता है। मुझे ढूंढना हो तो मोमिन के दिलों में ढूंढना। वो दिल टुकड़े होते, चोटें लगते लगते नागवारियों की, दिल में नूर भर गया। जब दिल में नूर भर गया, वो दिल अल्लाह की मोहब्बत का मरकज बन गया और अल्लाह की तजल्लियों का मरकज बन गया। और कहा कि अब वो वहां तो खुद फिर अल्लाह है ना, अब मैं जब झांकता हूं तो मुझे अल्लाह ही नजर आता है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, मुझे अल्लाह नजर आता है। मुसब्बिहात सब्बह लिल्लाह युसब्बिहु लिल्लाह फज़लुल्लाह युतीही मन यशा। इनाबत नहीं है। एक साहब मुझसे, मैंने एक साहब से कहा, मैंने कहा आपके इलाके में तस्बीखाने की खिदमत, लोगों को अल्लाह अल्लाह कहने लगा, एक दफा आप चक्कर लगा लें। मैंने कहा मैं 70 दफा चक्कर लगा लूं, कुछ नहीं होगा। जब तक इनाबत पैदा नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, बेकरारी नहीं होगी। एक अकेला दीवाना काफी है। कहां हवेली से निकला, लाहौर रोटी तलाश करने नहीं निकला था, कहां हवेली से निकला पागल दीवाना, यहां आया और आके बस जूत जगा दी, और अल्लाह ने आप जैसे आशिक मुझे मिला दिए, आप जैसे दीवाने मिला दिए, आप जैसे मुखलिस, आप जैसे सच्चे तालिब, सच्ची तलब रखने वाले, सच्चे कदम उठवाने वाले मुझे मिला दिए। मैं जब ये देखता हूं हुजूम के हुजूम, मैं कहता हूं तू तो आज वैसे ही तन्हा है, तू तो आइंदा भी तन्हा होगा और कब्र में भी तन्हा होगा, पर ये हुजूम कभी तेरी कब्र पे आएगा और आके कहेगा मौला इसकी मगफरत कर, इस पे रहम कर, इसने हमें शिर्क और बिदत और तेरे गैर के रास्ते नहीं दिखाए थे, इसने तेरे और तेरे कमली वाले की चौखट
दर मुस्तफ़ा के रास्ते दिखाए थे। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अल्लाह हिदायत पे रखे, अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे रखे, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। इनाबत उसके फजल को लेना है, उसके करम को लेना है, उसकी अता को लेना है, और फिर अल्लाह ऐसे लोगों की दौलत, रिज़्क़, इज्जत, सेहत, जिंदगी, फिर ऐसे लोग होते हैं जो इबादत और खिदमत के दौरान अल्लाह से बातें करते हैं। अल्लाह उनकी एक एक बात को फरिश्तों को नोट करवाता है, कहता है लिख के रखो, इनकी एक एक लफ्ज कबूल है, कबूल है, कबूल, हाँ कबूल है। फिर उन्हें ज्यादा हाथ नहीं उठाने पड़ते। अल्लाह कहता है कबूल है, मकबूल है, महबूब है, मबरूर है। जब जिंदगी के मोड़ की हिचकी खत्म हो जाए, फिर उसकी तकदीर है, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, तकदीर गालिब है। इस सफर को रवां दवा रखें। बड़े मोड़ आएंगे, लोग भी कहेंगे, मन भी कहेगा, जमाना भी अजीबो गरीब बातें सुनने को मिलेंगी। सुनते रहना, सहते रहना। मुकाबला, मार कुटाई, जलाओ घेराओ, मुनाजरे, मुजाहिदे, मुबाहिले, मुजाहिदे हैं, मुबाहिले, ये हमारे मिजाजों में नहीं है, हमारे मिजाजों में नहीं है। अल्लाह ने आपको एक अज़्म दिया है, सच्चा जज्बा दिया है। इस अज़्म के साथ रमज़ान के आखिरी अय्याम एक एक लम्हे को कीमती बनाना है। कहें कीमती बनाना है, और कीमती बनाना। एक एक अल्लाह मुझे आपको तलब दे दे, तड़प दे दे, और सच्चा जज्बा दे दे। और तलब और सच्चे जज्बे वाला इंशाअल्लाह झोलियां भर के जाता है, बहारें लेके जाता है। कभी देर हो जाती, अल्लाह आजमाता है कि बंदा कच्चा है या पक्का है। कभी ना लोगों की बातों में आना कि क्या मिला, इतने अरसे से जा रहे हैं, क्या बना। यही बात बिलाल से कहते थे, बिलाल फलां के पास गए तो लोगों को मालदार हो गए, तू तो आया कमली वाले की गुलामी में, तू तो और गुलाम बन गया, तुझे घसीटा जा रहा है, तुझे मारा जा रहा है, तुझे जलील किया जा रहा है। पर एक वक्त आया, हाय हाय, एक वक्त आया, बिलाल बिलाल थे। कहां चले गए थे मदीना छोड़कर? मैं दिमश्क गया, दिमश्क गया। वाह बिलाल वाह। आते हैं, बिलाली कुर्बानियां आती हैं, बस सहते रहें और मंजिल को ना छोड़ें। एक वक्त आएगा दुनिया एतराज करने वाली कहेगी, हम गलत थे, ये ठीक था, हम गलत थे, ये ठीक था। मैं दिमश्क गया हूं। वाह बिलाल वाह, क्या नूर है तेरा, क्या सरूर है तेरा। तो जज्बे हमारे बढ़ते चले जाएं। क्यों? अय्याम बाकी थोड़े हैं। आज कितना रोजा है? 24 खत्म हो गए, बस आया और गया। 24 खत्म हो गए, बाकी 6 रोजे हैं। जज्बे बढ़ते जाएं, जिंदगियां संवरती जाएं, और नस्लों के लिए रिज़्क़ की गठड़ी बांध अपने घरों को जाएं, और नस्लें खुशहाल हो जाएं। रूहानी दुनिया में भी, आबाद की दुनिया भी। उठ यार फरीद थी शादवल, उठ यार फरीद थी शादवल, मुंह झांको ना कर यादवल, ए झोंका थिसन आबादवल। तू क्यों मायूस होता है, तू क्यों अफसुर्दा होता है? तेरे घर की दुनिया फिर आबाद, फिर शाद होगी। उठ यार फरीद थी शादवल, मुंह झांको ना कर यादवल। मुंह झां कहते हैं उदासियां, मुंह झांको ना कर यादवल, ए झोंका तिसन आबादवल। ये घर, ये तेरे डेरे फिर से आबाद होंगे। दरिया न वांदे सदा हिक मणि, एक वक्त आए दरिया भी अपने रुख बदल देते हैं। हाँ, एक वक्त ऐसा आता है दरियाओं के रुख भी बदल जाते हैं। क्या तेरी किस्मत और तकदीर, तेरे बख्त और नसीब के रुख नहीं बदलेंगे? ना मायूस हुआ कर। इन जज्बों को लेके चलेंगे हैं। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल करे। आज की रात बड़ी ताकतवर रात है, और आज की रात में हैरत अंगेज तौर पे जो है वो बहुत ताकतवर, आज की 25वीं रात
बरकती नोट की तकसीम, दम वाले तेल पानी की तकसीम, झाड़ू वाला अमल। ओहो, आज की रात बहुत ज़बरदस्त रात है, और आज की रात में ही लक़द जाकुम सूरत तौबा का जो तावीज़ है, आप 3 तावीज़ लिखेंगे और बहुत खुशू से, बहुत ध्यान से, जल्दी नहीं करनी, और डूब के अल्लाह की तरफ तवज्जो करके दरूद शरीफ पढ़ के, लक़द जाकुम आती है तो वो पढ़े, वरना दरूद शरीफ पढ़ते हुए। और जो बैरून मुल्क के अफराद हैं वो भी 3 ही लिखेंगे। आप 3 लिखेंगे, एक मुझे दे जाएंगे, दूसरे लफ्जों में आपने इस्तकबालिया पे जमा कराना है और मैंने उस पे अमल करना है और बांधना है। और जो बैरून मुल्क वाले हैं वो तीनों अपने पास रखेंगे, वो तीनों अपने पास रखेंगे। एक जो है दरख्त पे, किसी ग्रिल पे कहीं जगह लटकाएंगे टेपिंग करके महफूज बारिश से, पानी से, और दूसरा घर में लटकाएंगे, और तीसरा यहाँ दे के जाएंगे। और जो बैरून मुल्क वाले अफराद हैं वो तीनों अपने पास रखेंगे, तीनों जो हैं 2 घर में लटकाएंगे, 1 दरख्त या ग्रिल पे। बैरून मुल्क के जितने हजरात हैं, इंशाल्लाह आज ये नक्श का अमल भी होगा और तावीज़ भी होगा। आज शाम आप इंशाल्लाह फारिग हो के लिखेंगे, खुद लिखेंगे। कागज भी मिल रख दिया इस्तकबालिया पे, और कागज भी रख दिया, तरीका भी रख दिया। इसकी फोटो कॉपी नहीं है, ख्याल करना, फोटो स्टेट नहीं है, हाथ से लिखना है, रोशनाई से लिखना है, दर्द के साथ, जज्बे के साथ। और आपको अर्ज किया है आखिरी अशरे में, आपका कोई आजमूदा अमल, तजर्बा शुदा अमल, लग जाएं उस पे, डूब जाएं, तस्बीह खाने के लिए भी, अबकरी के लिए भी, मेरी और मेरी नस्लों के लिए। और अपने आखिरी अशरे की जो आजमूदा तजर्बे, कोई नक्श, कोई तावीज़ जिन हजरात ने नहीं लिखा, बहुत तफसील से लिखे। मुझे तहरीरें मिल रही हैं, उतनी नहीं मिली जितनी मिलनी थी, मिल रही हैं, उसको भी लिखते चले जाएं। इंशाअल्लाह 27वीं आ रही है और फिर अगली चीज़ें, नेमतें आ रही हैं, अगली सादतें आ रही हैं इंशाअल्लाह ताला। होती अमल है और बहुत दर्द की कैफियतों के साथ अल्लाह को फरियादें कर कर के मौला इस जिंदगी की, इस रूहानियत की बंदिशें तोड़ दे। मेरे जज्बे बंधे हुए हैं अल्लाह, मेरे दिल बंधा हुआ है अल्लाह, मेरी आंखें जहां देखती हैं ना वो नहीं देखनी वहां ने वहां, मैंने यहाँ तूने दिखानी है वहां, मेरी हर चीज बंधी हुई है। तो करम करके करम कर दे, तो फजल कर दे, तो रहम कर दे। अल्लाहुम्मा काफा या इंसाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या इंसाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या इंसाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या इंसाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या अल्लाहुम्मा काफा या इंसाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या इंसाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या इंसाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या इंसाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या इंसाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या इंसाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या इंसाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या इंसाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या इंसाद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ। अल्लाह का जिक्र है, सुल्तानुल अज़कार है, मुराकबा की इनफिरादी कोशिश भी करते रहें, और दुआ है पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,